प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੈਥ ਲੈਕਚਰਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ +2 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ A as a sum of symmetric and skew symmetric। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸੈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਧਾ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਹੈ ਬੱਚੇ? 15, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਹੈ ਤੇ 2 ਪੈਨਸ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 13 ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਹੈ ਤੇ 5 ਪੈਨਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਨਸਿਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਰੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਫਸਟ ਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਸਟ ਰੋ R1, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ R2, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਰੋ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਾਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਰੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇੰਜ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ 15 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, 15, 6, 10, 2, 13 ਤੇ 5। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਸੈਕੰਡ ਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਥਰਡ ਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। A matrix is an ordered rectangular array of number or functions, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ sin x cos x, ਠੀਕ ਹੈ, 0 5, ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰਡ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਰੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ 2 ਰੋ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਰੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ sin x ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4। ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਰੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਰੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ a11 ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 ਪਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਤੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a12 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ a21 ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ
ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A22 ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ a ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 5 6 3 8 -2, ਸੋ ਮਤਲਬ m rows ਹੋਣ ਤੇ n columns ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? m cross n। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਰੋ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਦੋ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। m की होगी नंबर ऑफ रोज कितनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, n की वैल्यू की होगी नंबर ऑफ कॉलम कितने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। सो कॉलम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਰੋ ਸੀ। ਕਾਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਆ ਤੀਸਰਾ ਕਾਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ? 3। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੱਚੇ? 2 क्रॉस 3 ਆਰਡਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 × 3, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। 3 to the 6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ 3 2 1। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ? 3। ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ 3 × 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2 5 6 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ? 1 2 3 4। ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ 1 × 4 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ m × n ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੋ, ਕੰਸਟਰਕਟ a 2 × 3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ AIJ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ a ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਰਡਰ m × n ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ m × n ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਕਿੰਨਾ? 2 × 3। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ? 2 ਰੋ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ 3 ਕਾਲਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2 ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 3। ਸੋ ਇਹ A11, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੀਸਰਾ ਕਾਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਕਾਲਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ 2 ਰੋਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ 2 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਤੇ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਤੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ AIJ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਫ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 1 ਕਾਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 1 2 3 4। ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? 4 × 1। ਸੋ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ A1 A2 1 2 3। ਇਹ ਵੀ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 1 2 3 4। ਇਹ ਵੀ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ।
बट रो ज़्यादा है, इहदे विच 2 रो है 1 कॉलम है, 3 रो है 1 कॉलम है, 4 रो है 1 कॉलम है। सो इहदा मतलब की होया, ठीक है। इन जरनल आपां की कनक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जिहड़ा कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर की हुंदा है, M क्रॉस 1 हुंदा है, ठीक है। सो कहण दा मतलब जिहड़ी नंबर ऑफ कॉलम है वो हमेशा इत्थे 1 ही आएगा, ठीक है जी। अगे नैक्सट है रो मैट्रिक्स। हुण इहदी डेफिनेशन तो ही पता लगी जांदा बच्चे, जिहड़ी वो मैट्रिक्स जिहदे विच इक्को ही रो होवे, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स is said to be row matrix if it has only one row, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2, सो इहदे विच एक ही रो है, 2 कॉलम हो गए, ए 1 2 3 4, ए 1 क्रॉस 4, एक ही रो है 4 कॉलम है। सो जर्नलाइज करना हो तो 1 क्रॉस n। सो जिहड़ी अपने कोले रो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर की बनेगा जर्नल फॉर्म दे विच 1 क्रॉस n। सो ये याद रखना, जिंदे विच इक्को ही रो होवे दैट इज रो मैट्रिक्स, जिंदे विच इक्को ही कॉलम होवे दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। अगे आ गई बच्चे स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स की गल करते हैं। स्केयर मैट्रिक्स विच की हुंदा बच्चे, जिंदे विच नंबर ऑफ रोज ते कॉलम है जिहड़े ओह इक्वल होण। नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम्स है जिहड़े इक्वल होंगे है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब m ते n की वैल्यू की होंगी है, सेम होंगी है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इहदे विच रो कितनी है बच्चे 1 2, कॉलम भी कितने हैं 1 ते 2। सो इनका ऑर्डर की बनया 2 क्रॉस 2। सो एक मैट्रिक्स होर लै लैने आपां 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इहदे विच कितनियां रोज है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3। सो ये देखण नूं स्केयर लगदी भी है, मतलब स्केयर दियां सारे साइड्स इक्वल हुंदियां, उवें सेम चीज़ इत्थे अपने कोले सारे पासे मतलब सेम नंबर ऑफ एलीमेंट होणगे, हरेक रो दे विच भी ते हरेक कॉलम विच भी उन्ने ही होणगे। सो ये 3 क्रॉस 3 दी अपने कोले स्केयर मैट्रिक्स होगी। सो इहदियां एग्जांपल्स उन्होंने नीचे दित्तियां ही हैं। अगे आ गई बच्चे डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगनल मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है, पहला तो तुहानूं मैं डायगनल एलीमेंट्स बारे दसदा। किसी मैट्रिक्स के डायगनल एलीमेंट्स आपां किन्हां नूं कहने आ, ठीक है। बच्चे जेड़े एलीमेंट जिवें ए पहली रो पहले कॉलम ते पिया एलीमेंट, ये दूजी रो दूजे कॉलम ते पिया, मतलब जो पैर वालियां वैल्यूज सेम हो जान, A2 2 A3 3 A4 4, उन्हां एलीमेंट्स नूं आपां डायगनल एलीमेंट्स कहने हैं, ठीक है। सो क्लीयर है। मैं एक होर एग्जांपल दे दिना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आपां एग्जांपल लै दिंदे आ। ए डायगनल एलीमेंट्स है इहदे, ठीक है। सो ए एलीमेंट A1 कित्थे पिया पहली रो पहले कॉलम ते, ए कित्थे पिया दूजी रो दूजे कॉलम ते, ए कित्थे पिया दूजी रो तीजे कॉलम ते। सो इन्हां नूं डायगनल एलीमेंट्स बोलते हैं। तो डायगनल मैट्रिक्स की बनी हुण ये स्केयर मैट्रिक्स। हाँ, सब तो पहला तो बच्चे स्केयर मैट्रिक्स होगी, याद रखना। डायगनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स दी एक मैं गल दसदा, रिक्टेंगुलर नहीं आई इत्थे। रिक्टेंगुलर दे विच जिंदे विच अपने कोले m इज नॉट इक्वल्स टू n, जिवें 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 4 क्रॉस 5, ये रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गई अपने कोले। हुण कहंदा एक स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, इज सेड टू बी डायगनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगनल एलीमेंट्स आर जीरो। मतलब आ इन्हां दे डायगनल एलीमेंट आ गए, ठीक है। डायगनल एलीमेंट नूं छड्ड के बाकी जिहड़े मैंबर है वो जीरो होने चाहिए। हुण आ डायगनल एलीमेंट छड्ड दो, बाकी एंट्रीज की है जीरो है। सो इस तरह की मैट्रिक्स नूं आपां की बोलदे आ डायगनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ते डायगनल मैट्रिक्स की फर्क है, स्केलर मैट्रिक्स दे विच बच्चे ए एंट्रीज सेम हुंदियां, ਜਦੋਂ एंट्रीज सेम हो जान उन्होंने आप स्केलर मैट्रिक्स बोल देने हैं, ठीक है। ए डायगनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगनल एलीमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। सो इनके डायगनल एलीमेंट की होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अगे बच्चे आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है, ये एक तरह का वन है मैट्रिक्स का, ठीक है। जिवें आपां 5 into 1 5 कहने उवें ही मैट्रिक्स के विच जदों किसी मैट्रिक्स नूं आपां आइडेंटिटी दे नाल मल्टीप्लाई करया करांगे
ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ 1 ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 1 ਆर्डर ਦੀ ਹੋਗੀ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੈ, मतलब ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 1 ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ aij for i is equals to j ਵਾਸਤੇ, ठीक है, aij ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ for i equals to j, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇसेस ਵਾਸਤੇ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is called identity matrix। ਇਹਦਾ 2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ 1 0 0 1, 3 ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਏਗੀ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ਐਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਆਰਡਰ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 1 ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारियां की आ रही हैं बच्चे 0 आ रही हैं, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अगे नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। सो जीरो मैट्रिक्स भी कह लेंगे बच्चे, इनू नल मैट्रिक्स भी कह लेंगे, ठीक है। सो जिंदे बच्चे एलीमेंट्स सारे एलीमेंट्स वो मैट्रिक्स जिंदे सारे एलीमेंट्स 0 हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। सो ये सिंपल जी है बिल्कुल तुहाडी बुक चों ही लईआं गईआं बच्चे, ਤੁਸੀਂ आप भी वो गो थ्रू हो सकते हो, तुहाडी बुक दे विचों ही है ये सारी जिहड़ी NCERT दी बुक है। नैक्सट आ गई बच्चे इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वैलिटी, दो मैट्रिक्स इक्वल कदों हुंदियां बच्चे, एक तो उन्हां दा ऑर्डर इक्वल हो जाए, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल, एक की है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उन्हां दा ऑर्डर सेम होवे, ठीक है। ते नैक्सट जिहड़े एलीमेंट है कोरसपोंडिंग एलीमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशनस है, जिवें फॉर एग्जांपल हुण आ दो मैट्रिक्स की गल करिए, पहली गल तो इन्हां दा ऑर्डर चेक करो, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर तो सेम हो गया। एलीमेंट चेक करो, इधर जिहड़ा पहली रो पहले कॉलम ते मैंबर पिया, ते दूसरे पासे जिहड़ा पहली रो पहले ते पिया, ये इक्वल होने चाहिए। इधर देखो 3 ते 3 है, 0 ते 0 है, 1 ते 1 है, सो ये सारे कोरसपोंडिंग एलीमेंट इक्वल है, देयरफॉर दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। हुण इधर देखते हैं, इत्थे 3 है इत्थे 2 है, ये इक्वल नहीं गा, पहली रो ते पहले कॉलम ते जिहड़ा मैंबर पिया इस मैट्रिक्स दे विच 3 है, ते जिहड़ा इधर पिया वा वो 2 है, इट मीन ये इक्वल नहीं आए। जे ये इक्वल नहीं आए, ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं गया, भावें ऑर्डर सेम है। सो मैट्रिसेस इक्वल आपां कदों कहनी है, जदों उन्हां दा ऑर्डर सेम होवे ते कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स भी की है सेम हो, ठीक है जी बच्चे। बहुत ईजी है, ये तुसीं आप भी पढ़ोगे बुक तो तुहानूं ईजीली समझ लग जाणगीआं चीज़ां की है। सो मैं फिर भी तुहानूं एक बारी डिफाइन करतीआं सारियां। हुण आपां एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुहाडी जिहड़ी एक्सरसाइज 3.1 है बहुत ईजी एक्सरसाइज है, सो आपां ओह करन जा रहे हैं। सो सब तो पहला सम हैगा बच्चे तुहाडे कोले, इन दी मैट्रिक्स ए राइट दी ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स। हाँ जी, सब तो पहला आपां ऑर्डर दसना है। सो आपां की करिए, पहला तो ऑर्डर की हुंदा मैं फिर दोबारा दसदा, ऑर्डर किंदे इक्वल हुंदा M क्रॉस N दे। M की हुंदियां नंबर ऑफ रोज उहदे विच मैट्रिक्स दे विच किन्नियां, N की है बच्चे नंबर ऑफ कॉलम्स किन्ने उहदे विच, ठीक है। सो जे कोई बच्चा लेट आया, ठीक है, तो मैं फिर एक बारी दसन लगा, आ रो हुंदी बच्चे, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सैकेंड रो, दिस इज योर थर्ड रो, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज सैकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सो रोज काउंट कर लो, इहदे विच किन्नियां बच्चे 1 2 3 रोज है। कॉलम काउंट कर लो बच्चे 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है जी। सो कितना ऑर्डर आ गया इहदा 3 क्रॉस 4। सो बिल्कुल सिंपल जिहा क्वेश्चन सीगा। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना आ गया बच्चे अपने कोले 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलीमेंट्स, नंबर ऑफ एलीमेंट्स तुहानूं मैं दस्सिआ ही सीगा, इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर दईए आपां, 3 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एलीमेंट मैट्रिक्स दे किन्ने आ गए 12 आ गए। सो काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। सो अगे नैक्सट हुण एलीमेंट्स लिखने हैं A13, ये मैं 1 2 दसदा, बाकी तुसी मैं 2 दसदा इहदे, बाकी तुसी आपे करोगे। ये A13 का मतलब की है बच्चे, फर्स्ट रो
एंड थर्ड कॉलम ते एलीमेंट जिहड़ा पिया 1 का मतलब फस्ट रो 3 का मतलब पहली चीज़ रो नू रिप्रजेंट करूगी दूसरी चीज़ कॉलम नू रिप्रजेंट करूगी। हुण पहली रो क्या पहली रो किहड़ी है बच्चे ए है पहली रो कॉलम किहड़ा क्या उन्होंने थर्ड कॉलम क्या पहली रो ते थर्ड कॉलम ये तुहाडी पहली रो होगी थर्ड कॉलम किहड़ा ए हो गया। सो इन्हां दी इंटरसैक्शन ते किहड़ा पॉइंट पिया हुआ इन्हां दो लाइन्स दी 19 तो तुहाडा आंसर की आ गया 19 आ गया। ठीक है जी अगे नैक्सट अगला अपने को हैगा 2 1 सैकेंड रो ये तुहाडी सैकेंड रो है तो कॉलम किहड़ा फस्ट ये फस्ट कॉलम है सैकेंड रो तो फस्ट कॉलम की इंटरसैक्शन से जिहड़ा अपने को वैल्यू पई है दैट इज़ यूअर A21 ये तुहाडी कितना आ गया 35। इस तरह ही बच्चे A33 A24 तो A23 ये तुहाडा होमवर्क है ये तुसीं आप करना है ये बहुत ईजी है। ठीक है जी सो अगे नैक्सट इन एग्जाम्पल्स भी है बच्चे वो भी कर लेनी है तुसीं। हाँ नैक्सट क्वेश्चन कहता इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलीमेंट्स वट आर दी पॉसीबल ऑर्डरस इट कैन हैव मतलब M क्रॉस N 24 दिती हुई आपां नूं मतलब रोज़ से कॉलम नूं प्रोडक्ट करके कितना आउंदा पिया 24 आउंदा पिया। तुसीं हुण जस्ट ये देखना है फैक्टर की बन सकते हैं भी कितना दो नंबरस नूं मल्टीप्लाई करके 24 आ सकता है 1 इंटू 24 मतलब जां तां एक रो ते 24 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है फिर 2 इंटू 12 आ सकता है 3 इंटू ਜਿਹੜੇ टेबल च आउंदा बच्चे वो लिखी जाना 3 इंटू 8 4 इंटू 6 5 फिर 6 इंटू 4 उल्टा दो हुण 8 इंटू 3 कर दो 12 इंटू 2 कर दो तो 24 इंटू 1 कर दो ये ਜਿਹੜੇ पॉसीबल ऑर्डर है ਜਿਹੜੇ ਉਹ इस मैट्रिक्स ਦੇ हो सकते हैं। ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ मैट्रिक्स ਦੇ नंबर ऑफ एलीमेंट्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜੇ फॉर एग्जांपल 6 गए ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ फैक्टर एक तो 1 इंटू 6 हो गया 6 इंटू 1 हो गया 2 इंटू 3 हो गया 3 इंटू 2 हो गया ये पॉसीबल ऑर्डर हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के। कहने का मतलब की है भी जे किसी मैट्रिक्स के 24 एलीमेंट है कदों कदों पॉसीबल है जां तां उहदी एक रो ते 24 कॉलम हो जाण जां 2 रो ते 12 कॉलम हो जाण जां 3 रो ते 8 कॉलम हो जाण जां 4 रो ते 6 कॉलम हो जाण। ठीक है जी सिमिलरली अगे आपां इस तरह जिहड़े की है वो पता कर सकते हैं। हुण अगे उन्होंने की किया वट इफ इट हैज़ 13 एलीमेंट्स जे कहता उहदे 13 एलीमेंट होण बच्चे जो प्राइम नंबर आ जाता है तो उहदे दो ही ऑर्डर बनते हैं फिर 1 इंटू 3 क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं बनते प्राइम नंबर जां तो आपदे आप नाल डिवाइड होंदे आ जां 1 नाल। ठीक है सो ये जां तो इहदा ऑर्डर प्राइम नंबर जो आ गया जो नंबर ऑफ एलीमेंट्स प्राइम होए ठीक है तो उदों ऑर्डर की बनूगा हमेशा 1 इंटू 13 जां 13 इंटू 1 जिवें 7 है टोटल एलीमेंट 7 है ये 7 इंटू 1 जां 1 इंटू 7 जिहड़ा यही उहदा ऑर्डर हो सकता है। सो ये सैकेंड क्वेश्चन हो गया ये बच्चे तुहाडा होमवर्क है सेम क्वेश्चन इहदे नाल दा ये। ठीक है जी अगे नैक्सट चलते हैं। हाँ जी बच्चे ये कंस्ट्रक्ट करने वाले आ गए क्वेश्चन अपने को सो इहदे विचों मैं एक क्वेश्चन करवा दिना। सो फोर्थ ते फिफ्थ दे विचों मैं फिफ्थ का फस्ट करवान लगा बच्चे। सो ये मैं तुहानूं उपर कंस्ट्रक्ट करनी दस आया मैं फिर भी ये फिफ्थ का जिहड़ा क्वेश्चन है ए वाला मॉड वाला करवान लगा। ठीक है हाँ जी कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। सो आपां नूं की है 3 क्रॉस 4 मतलब उहदे विच रोज़ 3 होनियां चाहीदियां ते कॉलम 4 होने चाहिए। पहला तो मैट्रिक्स आपां कंस्ट्रक्ट कर लीए उहदी एंट्रीज लिख लीए रो कितनी चाहिए आपां नूं बच्चे 3 सॉरी ये मैं रो उधर साइड ते लिखनियां सी इधर कॉलम 4 चाहिए 1 2 3 4। ठीक है जी रो कितनी चाहिए 1 2 3 हुण पहली रो पहला कॉलम पहली रो दूजा कॉलम पहली रो तीजा कॉलम पहली रो ही चलती भी है अजे पहली रो चौथा कॉलम फिर अगों सैकेंड रो स्टार्ट होगी सैकेंड रो फस्ट अपने को एलीमेंट आ गया सैकेंड रो सैकेंड कॉलम सैकेंड रो थर्ड कॉलम सैकेंड रो फोर्थ कॉलम एवं थर्ड रो फस्ट कॉलम थर्ड रो सैकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है जी सो इन्हां च रिलेशन की दिता है हुण
ए वाला रिलेशन है बच्चे, इहदे च मॉडुलस है, आपां नूं पता है मॉडुलस की करदा है, नैगेटिव वैल्यूज़ नूं की कर दिंदा है, पॉजिटिव कर दिंदा है। ठीक है जी। सो जिथे भी नैगेटिव आंसर आएगा वो ते पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस है जिहड़ा वो पॉजिटिव ही हुंदा। हुण सब तो पहलां आपां A11 फाइंड करते हैं। A11 का मतलब की है, आ बच्चे रिलेशन है, इत्थे आई की वैल्यू 1 आ गई तो जे की वैल्यू A11, इत्थे AIJ है, मतलब आपां आई नूं 1 फिल कर देना इस रिलेशन दे विच ते जे नूं भी 1 फिल कर देना। इधर देखो किवें करना है, 1/2 -3, 1 प्लस जे भी 1 है, 1/2 माइनस ए -3 इंटू 1 -3 आ गया, +1 -3 +1 कितना आ गया, -2 आ गया, ये 1/2 इंटू -2 का मॉडलस की आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 1 आ गया बच्चे। ठीक है जी। अगे A12, ठीक है जी, ए फाइंड आउट करना। हुण मैं जल्दी जल्दी, तुहानूं पता लग गया है किवें करना है। 1/2 आई की वैल्यू 1, जे की 2, इहदे विच आई की 1, जे की वैल्यू 2। ए 1/2 आ गया, A13। सो आई की वैल्यू 1, जे की 3, ये तो बच्चे 0 ही आ जाना। ठीक है, -3 + 3 0 ही हो जाना इन्हें। अगे A21, हुण आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, ये बच्चे -6 +1 आ जाना, ये 1/2 -6 +1 -5, अगे मॉडल्स लगा आया 5/2 आ जाना। ठीक है जी। अगे नैक्सट सो मैं इत्थे सॉल्व कर दिना। अगे आपां कित्थों तक कर लिया है, A22 फाइंड करना है, आई की वैल्यू 2, जे की 2, ए -3 टू द 6, -6 + 2 -4, वो मॉड लगा है, +4 हो जाएंगे, इनकी वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली आपां A23 फाइंड कर लीए, 1/2 -3, आई की वैल्यू 2, जे की 3, ये बच्चे 3/2 आ जाएगा। एवं हुण A31 फाइंड कर लीए, बच्चे 9 -9 +1 -8 8/2 बन जाएंगे, प्लस दे क्योंकि मॉड लगा। एवं A32 फाइंड कर लीए, -9 + 2 -7 प्लस दे 7 बन जाएंगे बच्चे, 7/2 आ गया। A33 आई की वैल्यू 3, जे की भी 3, ये -6 आ जाएगा, प्लस दे 6 बन जाएंगे, ये भी 3 आ गया। सो अपने को जी मैट्रिक्स फाइंड करनी सी, वो की सी A11 A12 A13 3 क्रॉस 4 1 4 भी करना सी बच्चे, 1 4 वाली एंट्री रह गई अपनी, सो वो भी कर लीए फाइंड। सो 1 4 वाली रह गई बच्चे। ठीक है, A14 भी फाइंड कर दिए इत्थे, A14 की होना सीगा 1/2, A1/2 आ जाना सी, A24 भी फाइंड आउट करना सीगा, -6 + 4 -6 + 4 -2 आ जाने बच्चे, वो मोड करके फिर पॉजिटिव हो जाने हैं। एवं A34 भी फाइंड आउट करना सीगा, आई की वैल्यू 3, जे की 4,
ये -9 + 4 माइनस दे 5 आ जाने, मोड करके प्लस ही आ जाना, 5/2 आ गया बच्चे। सो ये सारिया वैल्यूज आप इतने फिल कर दिए। आ मैट्रिक्स ही अपनी, सो A11 की वैल्यू कितनी आई सी बच्चे, आप पिछों देख लीए 1 1/2 तो 5/2, 1 1/2 तो 5/2। A14 की कितनी आई है 1/2। A21 की कितनी आई सी 5/2 की 0 आई सी बच्चे, इनकी वैल्यू 0 आई है। इनकी वैल्यू 5/2 आई सी। अगे सैकेंड रो सैकेंड कॉलम की 2, A23 की 3/2, A24 की इधर कड्डी सी आपां 1, A31 की 4, A32 की 7/2, A33 की 3, A34 की 5/2। सो बच्चे ये क्वेश्चन है जिहड़ा आपां इस तरह सॉल्व करना सीगा, ठीक है जी। सो अगे नैक्सट चलते हैं। हाँ, नैक्सट है बच्चे इक्वैलिटी वाले, इक्वैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया अपने को, ठीक है। ये देख लो किवें करने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। हुण ये आपां नूं इक्वल गिवन है बच्चे, आपां XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हुण तुसीं जस्ट कोरसपोंडिंग एलीमेंट इक्वल कर देने आ। 4 Y दे इक्वल है, Y की वैल्यू कितनी आ गई 4। 3 किंदे इक्वल है Z दे, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कोरसपोंडिंग एलीमेंट इक्वल होणगे। Z की वैल्यू कितनी आ गई 3, X की कितनी आ गई 1 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो 5 की कितनी 5 ही आ गई। सो ये तो इक्वल है गई है। सो अगे सैकेंड पार्ट देखो किवें करना है। हुण ए X + Y किंदे इक्वल रखांगे आपां 6 दे इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन की है, उन्हों का ऑर्डर सेम होंगे तो कोरसपोंडिंग एलीमेंट इक्वल होंगे। जोड़ा एलीमेंट पहली रो पहले कॉलम से पिया तो जो दूसरी मैट्रिक्स है उनका पहली रो पहले कॉलम से पिया इक्वल होणगे। सो X + Y = 2 का 2 के इक्वल होंगे ही है। सो 5 + Z ये 5 के इक्वल, ठीक है। 5 नाल 5 कैंसल आउट हो गया, Z की वैल्यू 0 आ गई। अगे X * Y ये 8 के इक्वल है बच्चे, ठीक है। इत्थों Y की वैल्यू तुसीं 8/X आ गई, इनू फिल इन 1 कर दो, ठीक है जी। इनू पुट इन 1 कर दो। सो ये तुसीं जिहड़ा की है इत्थे Y की वैल्यू 8/X, ये तुहाडे कोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जूगी, ठीक है जी। इनू सिंपलीफाई कर लेना है, ठीक है। ये तुहाडा हुण इत्थों तुसीं आप कंप्लीट करना बच्चे, ठीक है। इनू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इनके रूट्स है जिहड़े फाइंड आउट कर लेने, ठीक है जी। सो इस तरह ही तुहाडे कोले ये क्वेश्चन है X + Y + Z 9 के इक्वल होएगा, X + Z 5 के इक्वल होएगा, Y + Z 7 के। हुण Y + Z की वैल्यू कितनी है 7 है, इत्थे फिल कर दो। आ Y + Z की वैल्यू इत्थे फिल कर दो। ये कितनी वैल्यू इनकी 7, 9 X की वैल्यू 9 - 7 कितनी आ गई 2। एवं X + Z की वैल्यू कितनी दी है 5, इत्थे X + Z की वैल्यू 5 फिल कर दो तो Y एज इट इज रह जाऊगा, ठीक है। तो ये 9 के इक्वल है, इनू उधर लै जाओ। ये कितनी बच्चे आ गई 4। हुण ये X की वैल्यू आ गई, ये Y की वैल्यू आ गई, ये X ते Y दी वैल्यूज इहदे विच फिल कर दो। तो इत्थों Z दी ये बच्चे 9th 10th का काम है, तुसीं ये लोअर क्लासेस च कीता है, सिंपल जिहा काम है। फिर दोबारा से देख लो Y प्लस अपने कोले X + Y + Z ये 9 के इक्वल सी, Y + Z की वैल्यू कितनी 7 है, इत्थे 7 भरी। सो इत्थों एक इक्वेशन बनी। एवं X + Z की वैल्यू 5 है, इत्थे X + Z की वैल्यू 5 भरी गई, ठीक है जी। मैं Y + 5 9 के इक्वल आ गया, 5 उधर जाके माइनस का हो गया। सुन हुण ये X ते Y तुसीं इस इक्वेशन च फिल कर दोगे, इत्थों Z आ जाऊगी तुहाडे कोल, जां इन्हां विच X की वैल्यू फिल कर दो, किसी मर्जी इक्वेशन च फिल कर दो। इत्थे X2 भरोगे, 2 उधरों 5 दे विचों सबट्रैक्ट हो जाऊगा, 3 वैल्यू आ जाऊगी, ठीक है जी। सो ये इस तरह ही बच्चे 7th क्वेश्चन करना तुसीं A - B नूं -1 के इक्वल रख लेना, ठीक है।
2a ਮਾਈਨਸ b ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ, a ਮਾਈਨਸ b ਨੂੰ -1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, 2a ਮਾਈਨਸ b ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਲੋਚਨ ਵਿਧੀ। ठीक है, विलोचन विधि जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10th 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ठीक है। वैसे एलिमिनेशन मैथड ਆਪਾਂ यूज़ करांगे, ਉਹਨੂੰ विलोपन विधि कह देंगे पंजाबी 'ਚ शायद, ठीक है। सो इसे तरह ही 2a प्लस c है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ 3c प्लस d ਨੂੰ 13 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ, ठीक है। सो ਇੱਥੋਂ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ c ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੇ।